Okay, we are live now, yeah? So, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Reflections with Darshna. And apologies to have kept you waiting because we had some technical glitches which happen sometimes. So, apologies for keeping you waiting. So, I wish you all a Merry Christmas in advance because that weekend we won't be meeting. And also, I want to share with you something very important. So, tomorrow is a very important day. Tomorrow, the Saturn and the Jupiter will be very close to each other. And this hasn't happened in 800 years. So, tomorrow is going to be a turn around of all of our lives with concern to the planetary positions. So, some people say that the good days are here, the Kali Yuga is over and maybe Satyug is starting. I don't know the whole truth, but I'm telling you what others have shared with me, the astrologers and the people who are, numerologists and all. So make sure you meditate tomorrow. There are a lot of meditations available online on YouTube. You can even go on Art of Living app, as you know that I'm very passionate about meditation, and I'm very passionate about making people meditate and have that space within. So you can download the Art of Living app and you can meditate on the app, or you can even subscribe to Sri Ravi Shankar channel, and you can meditate on Om Namah Shivaya. There's Om Namah Shivaya meditation. There is Hari Om meditation. So twice a day tomorrow, make sure you meditate. Yeah, that's one important thing I wanted to share with you. And other important thing is our wonderful, wonderful guest. I'm so excited to welcome him and welcome Bridge. Welcome to my show. Namaskar, Darshana ji. Namaskar, namaskar. I'm so happy to be, the part of your talk show. I have seen your shows. It's pretty impressive. Your guest and the questions you ask. I'm a bit nervous, but yeah, at the end of the day, I am here facing you, and yeah, I'm very happy. Well, before we start, let me ask you a question. Where were you? I think almost 7 to 8 weeks. I haven't seen you doing the reflection where the reflection was missing. What was happening? So I was doing 200-hour yoga training course. It was an Wow. online course, but Okay. that kept me very busy because we have to watch the videos, we have to do the practices, and Hmm. as the first 2 weeks it was doable, and then as the momentum caught up, the the work and everything you do with it started increasing, and I couldn't actually do my chat show, so apologies for that. And I was so immersed in it actually, because we have to watch the video, then we have to submit assignments, we have to do online quizzes. It's such an interesting platform, and I Yeah. thoroughly enjoyed this 8 weeks. So my results, I hope I've done well. The results are going to be out tomorrow, Hmm. so waiting for tomorrow actually. You're gonna do well, Darshana. You're gonna do well. Yes. Whatever So you have I mean, done so far, you've done well. Yeah. I teach Art of Living courses since many years, teaching Sudarshan Kriya, but uh, you know, uh, Kriya and breathing exercise is one thing, and yoga is another thing. Though people do mix it up, so I thought Mix it. this is the time to qualify. So I Hmm. said yes, not let's not miss the opportunity to do this Hmm. workshop. Hmm. But coming back to you, Yeah. uh, आप तो हमें बोलते हैं, but I always watch your shows, and I was thinking कि इतनी बड़ी हस्ती, अभी इनको कैसे पूछूं, ये मेरे शो में आएंगे कि नहीं आएंगे. अरे दर्शना जी, ये क्या बात कर दी। मतलब कि एक तो तारीफें करना कोई आपसे सीखे। मैंने आपके पहले शोज भी देखे हैं। आप जब तारीफें करती है तो ऑब्वियसली देखिए किसी भी कलाकार को बहुत अच्छा लगता है, और मुझे खास करके अगर कोई मेरी तारीफ करे तो मैं दिन भर बैठ के उसके पास सुन सकता हूँ। When you actually came to me saying, Bridge, are you okay to attend my show? The first thing was, the first concern I had, I have, I spoke to a lot of people. I have done my talk shows. I'm quite confident asking questions.
but how I'm gonna actually answer the questions if that is being thrown to me. So I was a bit nervous, but then I am here, and considering it's you, you're gonna make it comfortable. That's what I believe. You're gonna ask very easy questions, which I'm gonna be. Well, you are very good at your job, and you make your guest comfortable, and I'm pretty comfortable. Yeah. So, I watch so many of your videos, and you go online and you host shows, you also sing, and very charming personality. I noticed that a lot of people comments. I can see some comments flashing here as well. Just gonna read out the comments to you later on. But coming back to this, the success that you have achieved, and in a foreign country, and you're so popular with your singing, with your hosting. You're a radio show host as well. So my question is, uh, बाहर जो दिखता है वो तो एक चीज है. What we see outside is success is one thing, but underneath there is a lot of struggle. So the reason for inviting you on my show is, of course, people love you, you're very popular, and I'm honored to have you as my guest. So thank you very much once again for being on my show. So the first question is, there's a lot of things going on in the background, which, people who are sitting and just watching, they don't realize what has been going on, what has made you here to be in this situation like that. So that's my question. What were your struggles? How did you think of becoming a chat show host? How did you become a singer? I'm asking, throwing you all the questions at one time, Yeah, because yeah, yeah. I am excited to know all this. Well, Darshana ji, कई बार हम लोग ये कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं, कई लोग आते हैं, बहुत नीचे से ऊपर जाते हैं. एंड मैं हर उस आदमी को ये कहता हूं कि जब आप स्ट्रगल के दौर से गुजरते हो ना, तो वो जरूर लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए. वो इसलिए शेयर करनी चाहिए क्योंकि मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, और कई ऐसे लोग होंगे जो ब्रिज के 2000 वाले एज में होंगे, जो 2000 का ईयर था जब ब्रिज स्ट्रगल कर रहा था, उस दौर पे होंगे, और ये कहानियां उनको मोटिवेट करेंगी कि बेटा देखो, ये लोग भी उसी दौर से गुजरे हैं और उनको आगे जाना है. सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत दिल के करीब है ये सवाल. और हर किसी की कहानी होती है, आपकी भी कहानी होगी. आज आप भी शो होस्ट कर रही हैं, योगा ट्रेनिंग ले रही हैं. हर किसी का वो दौर होता है जो कभी भूला नहीं जा सकता है, और उसके लिए गर्व भी महसूस करनी चाहिए. मैं तो गर्व महसूस करता हूं. जो मेरा बचपन था, मेरे माँ पिताजी जो थे 4th ग्रेड कर्मचारी थे हॉस्पिटल में, और मेरे पापा जो थे कुक थे, वो पेशेंट के लिए खाना बनाते थे. मेरी माँ वहीं पे 4th ग्रेड नर्स थी. हम लोगों ने, जो पापा जहां खाना बनाते थे, किचन, एक छोटा सा किचन था, हमने उसी किचन में अपनी जो है बचपन का ज्यादा समय उसी किचन में गुजारा. हम 3 भाई, 1 बहन, और माता पिता दोनों, 6 लोग. उस किचन में खाना भी पकता था, और वहीं आइड साइड में हम लोग बिछाकर सोते भी थे, और वहीं से हमारी. तो जब भी मैं ये सोचता भी हूं या फिर किसी के साथ शेयर भी करता हूं, तो अंदर से मेरे को ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने वो भी दिन देखा है ना. पर जो पापा थे बड़े हिम्मत वाले थे. उनकी हिम्मत को देख करके हमें हिम्मत आता था. माँ भी बड़ी सहनशील थी. बचपन में हमने पढ़ाई की, बहुत संघर्षों के साथ आगे बढ़े. जब हाई स्कूल तक किसी तरीके से हमने पढ़ाई तो कर ली. हाई स्कूल तक ठीक था, गवर्नमेंट स्कूल था. माँ पिताजी को इतनी टेंशन नहीं हुई कि बच्चे पे खर्च नहीं करना है ज्यादा, पढ़ लेगा, जैसे तैसे हम लोगों ने पढ़ाई की. हाई स्कूल के बाद कॉलेज जाने का दौर शुरू हुआ, तो मेरी इच्छा थी कि मैं बाहर जाऊं. और आप यकीन नहीं मानेंगी, पूरे मेरे को पढ़ाई से बड़ा शौक रहा. मैंने बहुत मन लगा के पढ़ा. शायद इसलिए मन लगा के पढ़ा क्योंकि मैं पापा की जिंदगी नहीं जीना चाहता. वो स्ट्रगल वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता, जहां वो अपने कपड़े नहीं खरीद पाते थे. मतलब उन्हें मैंने कभी भी पूरे कपड़ों में नहीं देखा, कभी भी नहीं, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो. तो
वो दिन हमने देखे। और फिर जब बाहर जाने की बात हुई कि अब हमारा लड़का बाहर जाना चाहता है, हम कैसे पढ़ाएंगे इसको? जैसे तैसे माँ बड़ी हिम्मत वाली थी। माँ थियोरेटिकली बातें करती थी, पापा प्रैक्टिकल बातें करते थे। माँ कहती थी कि हम पढ़ा लेंगे, ये थियरी है। पापा कहते थे कैसे पढ़ाएंगे, ये प्रैक्टिकल है। क्या प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हो कि कैसे पढ़ाओगे? तुम हवा हवाई वाली बातें कर रहे हो। जैसे तैसे आखिरकार मैंने कॉलेज भी किया, बाहर जाके पढ़े। उसके बाद फिर मेरा गोवा में एडमिशन हो गया, होटल मैनेजमेंट की स्टडी में। मैंने गोवा का एंट्रेंस पास किया। अब तो पापा पागल हो गए कि अब कैसे पढ़ाएं, गोवा कैसे भेजे यार इसे, ये तो हद हो गई, मतलब ये ज्यादा हो गया। फिर भी मेरे बड़े भाई थे, मतलब हैं, और मेरी माँ, उन लोगों ने फिर से हिम्मत करके लोन वोन लेकर के जैसे तैसे मुझे पढ़ाया। पढ़ने के बाद 3-4 साल गुजरे, पढ़ाई की, बड़ी उम्मीदें थी कि होटल मैनेजमेंट करके तो यार जॉब लाखों की लगेगी। उस समय 2001 की बात बता रहा हूँ, टेररिस्ट अटैक हुआ अमेरिका में, और पूरी की पूरी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो ढह गई, खत्म हो गई, जॉब्स कट डाउन हो गए। 2001 की ये बात है। लेकिन 2001 से जो सिलसिला शुरू हुआ काफी दिनों तक, 2004 में भी हमने बड़ा बुरा दौर देखा। एंड आई वाज फ्रॉम अ हिंदी मीडियम स्कूल, जहां पे अंग्रेजी दूर दूर तक नहीं होती थी। हमने शायद दिस इज अ बैट, दिस इज अ कैट, दिस इज अ रैट हमने 6th क्लास में सीखा था। जब हम 6th क्लास में गए तो हमें दिस इज अ बैट, दिस इज अ कैट पढ़ाया जा रहा। अब जब हम गोवा पहुंचे तो गोवा में मुंबई, दिल्ली, सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी के बड़े बड़े घर के लड़के गाड़ियों में आ रहे हैं। मतलब बात बात में उनकी अंग्रेजी सुनूं तो मैं डर जाऊं। यू नो, मतलब कि एक एक बड़ी सोसाइटी, एक बहुत ही बड़ा ऊंचे दर्जे के लोग, जिनकी बचपन की पढ़ाई, जिनके माँ पिताजी वो कहते हैं ना कि सोते भी हैं तो अंग्रेजी में सोते हैं, उनके खर्राटे भी अंग्रेजी में निकलते हैं। ऐसे लोगों के बीच में ब्रिज पहुंच गया। अच्छा, ब्रिज तो आज ब्रिज बना है, पहले ब्रजेश था। मतलब ब्रजेश मेरा पूरा नाम है। तो यहाँ पे मेरे को शॉर्ट करना पड़ा, लोग बड़ा स्ट्रगल करते थे, हमारे अंग्रेजी भाई बहन जो है बड़ा स्ट्रगल करते थे, तो मैंने उसे ब्रिज कर दिया। तो फिर वहां पे जैसे तैसे पहली जॉब लगी, मेरी पहली जॉब लगी 1,000 रुपए की महीना, 1,000 रुपया 2004 में। आप सोचिए, मैं तो घर पे फोन करके बोल भी नहीं पाया कि मेरा 1,000 रुपया महीना है, जिसमें से 500 रुपया तो मेरा रेंट पे चला जाएगा। 500 रुपये में मुझे जैसे तैसे, मतलब वो स्ट्रगल का दौर जो शुरू हुआ, खत्म ना होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर दिल्ली आया, फिर ओबरॉय में काम शुरू हुई, मैंने ओबरॉय में काम शुरू किया, स्थितियां बदलने लगी। फिर ना, मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, हाँ, लेकिन ये है कि कहानी इतनी है कि अगर मैं शुरू करूं तो पता नहीं कब खत्म होना है। लेकिन स्ट्रगल बहुत थे उन दिनों। 2004 से निकल करके 2009 2010 तक मेरे स्ट्रगल का दौर था। बहुत ही बुरी परिस्थिति ये थी कि मैं घर वापस नहीं जा सकता था, और ये बोल के कि नहीं मेरे से नहीं होगा, क्योंकि वो उतने हिम्मत में नहीं थे, मेरे पेरेंट्स इतने हिम्मत में नहीं थे कि इतना बड़ा रिस्क ले सकते थे कि लड़के पे इतना खर्च किया और ये वापस हार कर आए। फिर मैं नाइजीरिया गया, नाइजीरिया भी मैंने काम किया। नाइजीरिया में मैंने देखा बड़ा खतरनाक कंट्री। लोगों ने बहुत समझाया था नाइजीरिया मत जाओ, लेकिन अब नौकरी चाहिए थी तो मैं नाइजीरिया चला गया। वहां पे मतलब कि बहुत बार लूटा, बहुत बार पिटा। फिर यूके का ऑफर आया, मैं यूके आ गया। यूके में 2010 में आया, और बस तब से मैं यही हूँ। तो मेरी जो पहली जॉब थी, पहली नौकरी, मैं होटल मैनेजर के तौर पे आया था हैरीफोर्ड। हैरीफोर्ड एक जगह है, which is I think 70 to 80 miles from here। तो उस जगह पे मैंने काम शुरू किया। अच्छा, जब आया तो इन अंग्रेजों की अंग्रेजी सुन के मैं पागल हो जाऊं। मेरे को तो समझ में नहीं आया बंदा बोल क्या रहा है ना। चलो भाई, जैसे तैसे अंग्रेजी मैंने ठीक कर ली, जैसे तैसे मैनेज करके मैंने जॉब भी ले लिया। लेकिन अब जब एक आए रेस्टोरेंट में, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, अब ये वो क्या है, मतलब मैं, I'm not disrespecting any language, but yeah, obviously I struggled a lot because that English was beyond my thing, you know। तो जैसे तैसे आधी अधूरी बातें समझ के, आधा तो बाउंसर जाता था, आधा समझता था जैसे तैसे। फिर वहां से हैरीफोर्ड से निकले। हैरीफोर्ड में क्या होता है कि वेल्श लोग ज्यादा हैं, तो वो वेल्श इंग्लिश थी। तो वहां से फिर निकला, फिर बर्मिंघम, फिर अच्छा, जब तक पब में रहा, जब तक होटल में रहा, जिंदगी नहीं थी, पैशन जीने का टाइम नहीं था। नाउ आई एम वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, और आज के डेट में भगवान की कृपा से बहुत अच्छे पोस्ट पे हूँ। मेरी वाइफ भी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में काम कर रही है, सो हम दोनों ही उस पे काम कर रहे हैं।
तो एक चीज अच्छा ये हुआ कि मैं अपने पैशन के लिए टाइम दे पा रहा हूं। जो ये मेरे पैशन थे, जो सिंगिंग है, जो होस्टिंग है, आरजेइंग है, ये सारी चीजों को मैं टाइम दे पा रहा हूं। ये मेरी कहानी है दर्शना जी। वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। ये जो आपने बोला ना दैट इंग्लिश जो होता है ना वो, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, तो इंग्लिश तो कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे। आई डिड माई मास्टर्स डिग्री इन बॉम्बे, पर यहाँ आने के बाद मुझे भी इंग्लिश का प्रॉब्लम हुआ था। वो एक्सेंट एक होती है ना, वो एक्सेंट जो Yeah. बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेंट जब आता है, स्कॉटिश तो मैं आज तक नहीं समझ पाता, स्कॉटिश इंग्लिश जो बोलते हैं तो वो आज तक नहीं समझ Yes, पाता। ये एक्सेंट का प्रॉब्लम तो मुझे भी हुआ था, तो आई कैन अंडरस्टैंड इफ somebody has not studied, like from nursery I was studying in English medium, and still I could face the problem, so I can imagine other people like you. Yeah, it is a struggle and it is a matter of getting used to this Very accent. true. So Very true. coming back to singing, you used to be passionate about singing from childhood. Did you always want to be a singer? Did you always want to be a host, or what is it, or did it just happen? Because sometimes things do happen, suddenly in our lives. Yes, Darshana ji, the beauty of life, and and that's how I put it. The beauty of life is, if something happens accidentally, you start loving it, isn't it? But that talking thing, you are talkative, the people love the way you talk, no matter what you are talking, but people are just loving you, मैं कुछ भी बोलता था, मेरे दोस्त मुझे घेर के बैठ जाते थे, यार बड़ा मजा आ रहा है, सुना सुना सुना, क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। मतलब मुझे लगे कि मैं इतनी नॉनसेंस बातें कर रहा हूँ कि मैं ट्रेन पे चढ़ा, टीटी आया, मैंने उसको टिकट ना दिखा के कैसे बहाने बनाए, एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग दैट, एंड मोस्ट ऑफ इट समटाइम आई यूज्ड टू मेक माय ओन स्टोरीज, क्योंकि जब आपको लगता है ना लोग एंजॉय कर रहे हैं तो फेंको और फेंको, है ना, चल रहा है धंधा अच्छा है, फेंको। दैट इज वेयर आई रियलाइज्ड, आई गॉट दैट सेंस ऑफ ह्यूमर इन माय सेल्फ. That is where I participated in Great India Laughter Challenge. Not many people knows about it. I participated in Great India Laughter Challenge, जहां पे कपिल शर्मा ने होस्ट किया था, नवजोत सिंह सिद्धू एंड शत्रुघ्न सिन्हा जज थे. I did 4-5 episodes. सेमीफाइनल में मैं आउट हो गया. मेरे से अच्छे लोग थे, पर हाँ, तो उस समय मुझे रियलाइज हुआ, मेरे जो ओबरॉय के मैनेजर थे, उन्होंने मेरे को एक्चुअली ऑडिशन करवाया था स्पेशली, कि ब्रिज तेरे में सेंस ऑफ ह्यूमर है, तेरे में जो है ना, यू शुड ट्राई इट. तो मैं उनके कहने पे गया. तो कई चीजें एक्सीडेंटल हो जाती हैं, फिर उसके बाद काम में ऐसा व्यस्त हुआ कि ये सारे पैशन में भुला गया. मैं इधर आया तो आधा टाइम जो स्ट्रगल करता रहा कि इन अंग्रेजों को समझूं कैसे मैं, तो उस स्ट्रगल में मेरे सारे पैशन खो गए. फिर उसके बाद आधा टाइम तो मेरे को इस पे लग गया कि अपने लिए वक्त ही नहीं है. सुबह उठता था, ब्रेकफास्ट है, फिर लंच होने लगा, रेस्टोरेंट की कहानी बता रहा हूँ, फिर लंच होने लगा, फिर डिनर होने लगा. एज अ मैनेजर, जो रेस्टोरेंट मैनेजर और पब्स मैनेजर के लोग होंगे जितने, वो मेरी बात को समझेंगे कि लाइफ आपकी जो है बस उसी की होकर है, दिन रात, क्योंकि स्टाफ का टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, स्टाफ रुकते ही नहीं है. तो एज अ मैनेजर यू गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द शो, एंड द शो मस्ट गो ऑन, एंड दैट इज वेयर द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स, बिकॉज बॉस तो कुछ नहीं सुनता. बॉस विल कम एंड से, ब्रिज अच्छा क्या हो रहा है, ट्रिप एडवाइजर में ये कंप्लेन आ गया यार, व्हाट्स हैपनिंग. They're not gonna worry about how you are managing, what you are doing. You are getting the money, you do the job. That's how it is. वाइफ ने बोला एक काम करो, या तो तुम पब में रह जाओ या मेरे को तलाक दे दो, क्योंकि जिंदगी तो मुझे समझ में नहीं आ रही. यहाँ पे तुम जब से आए हो, ना माँ है ना बाप है, तुम्हारे भरोसे में आ गए इंडिया छोड़ के. अब तो बच्चा भी हो गया, ये बच्चा अपने बाप को ढूंढेगा, कल को पड़ोसी को डैडी डैडी बोलेगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. मैंने बोला यार चलो तो क्या किया जाए बताओ. तो कहती कि देखो, अच्छा पैसा बड़ा अच्छा था पब्स में ना, पब और रेस्टोरेंट पैसे बड़े अच्छे थे. तो मैंने कहा कि देखो फिर ये है कि मैं लाइन बदलूंगा तो पैसे से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. तो फिर उसने बोला कि नहीं ठीक है जो भी हो, अब पैसा बहुत हो गया, अब तुम वापस आए. तो हमने फिर बहुत नाक रगड़ा, बहुत इधर उधर काम किया हमने एडमिन की तरह. फिर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के जॉब्स अप्लाई किए बहुत सारे. कोई भी इजी प्रोसेस नहीं है, पर कई 6-7 बार अप्लाई करने के बाद एक बार हो गया मेरा, फिर 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड इंटरव्यू हो. दैट इज हाउ जो है. फिर एक बार किसी दोस्त ने गाना सुन लिया, मैं ऐसे ही गा रहा था, ऐसे ही गाता था, चलते फिरते हम लोग कैसे गाते,
तो एक दिन ऐसे ही एक दोस्त ने मेरा गाना सुन लिया, मैं कुछ गुनगुना रहा था, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, इस दिल के सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, इस दिल के सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। बोलता है अच्छा अच्छा, अरे ब्रिज तेरी आवाज तो कुमार सानू से मिल रही है यार, यू नो यू आर डूइंग सो वेल, मतलब तुम्हारी आवाज बड़ी अच्छी है। मैंने बोला छोड़ ना यार, काहे को मुझे ले रहा है। तो ऐसी ही कहानी शुरू हुई, फिर 1 से 2 ने जाना, 2 से 3 ने जाना। एक दिन किसी पब वाले के पास मेरा वीडियो चला गया, एक ने रिकॉर्ड कर लिया था, तो किसी रेस्टोरेंट वाले के पास चला गया। अब रेस्टोरेंट वाले ने बोला ब्रिज भाई आप हमारे यहाँ कर गा दिया करो, आप ऐसे ही गाते रहते हो तो हमारा माइक्रोफोन पकड़ो, शुरू हो जाओ। अब हमने वहां से शुरू कर, लाइम एंड चिली रेस्टोरेंट है यहाँ पे, उनके मैं शोज आज तक कर रहा हूँ, मैं रेगुलरली करता हूँ, उनको कभी मना नहीं करता, क्योंकि म्यूजिक की दुनिया में अगर ब्रिज को लोग जानते हैं तो उसी रेस्टोरेंट की वजह से, क्योंकि उन्होंने ही ब्रिज को पहला मौका दिया, बोला कि ब्रिज तुम आओ गाओ। और आज के डेट में भगवान की ऐसी कृपा बरसी हुई कि मैं लंदन से लेकर के पूरे ऑल ओवर द यूके में, ग्लासगो से लेके एडिनबरा से लेकर के आप कह लीजिए कार्डिफ से लेकर के लंदन में हर तरफ शोज करके आया हूँ। और लोग अभी भी, अब तो मैं ज्यादा दूर नहीं जाता क्योंकि मेरे को बजट वाइज थोड़ा टाइट पड़ जाता है, इतना ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। और बर्मिंघम मेरे को बहुत बिजी रखता है, बर्मिंघम और लंदन की बातें कर लीजिए तो बहुत बिजी रखता है, चाहे वो शो होस्टिंग करवानी हो। मैं तो शो होस्ट भी करता था यहाँ टीवी पे, अभी मैं अपने चैनल के लिए काम कर रहा हूँ, अपना यूट्यूब चैनल है ब्रिजवानी, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने अभी ये सब छोड़ दिया। और दूसरा क्या होता है कि लोग आपका फायदा भी बहुत उठाते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा बचकर चलना पड़ता है। तो ये रहा कि ऐसे तैसे लोगों ने जानना शुरू किया, दैट इज हाउ आई स्टार्टेड सिंगिंग। जी So ऐसा सॉरी, है कि एक जवाब देने के लिए मेरे को बहुत सी चीजें जोड़नी पड़ती है, दैट इज व्हाई आई हैव टू गो अराउंड एंड देन गेट एवरीथिंग टुगेदर, यू नो। तो जी नो वरीज, ये अपना ही शो समझिए, और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू लिसन. आई डिडंट वांट टू इंटरप्ट यू, बट प्लीज गो ऑन, कैरी ऑन, बिकॉज आई लव स्टोरीज. और एक्चुअली मेरी थीम होने वाली है वेरी सुन. आई एम प्लानिंग थिंग्स. अभी नाउ दिस 8 weeks have been very busy for me, but the next theme of this show is going to be, you know, life stories, inspiring life stories. कितने हम जो कॉमन लोग होते हैं ना, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें की है कि वो सलाम के लायक है, you know, but they are just you know, forgotten or they are not acknowledged. तो ये भी मेरी थीम होने वाली है बहुत जल्द. पर क्या है, you need to find people, you need to find time, you need to, you know, make it compact, make it interesting. So it's time consuming. So for this 8 weeks I wasn't doing anything. I was just saying that let's get focused on this teacher's training, because to be a teacher is a huge responsibility. It's not like, you know, you become a teacher and you don't know things. That's fine if you don't know, but at least you should be prepared with everything. So I didn't leave any stone unturned, and let's see what the results are. There was a practical exam and there was theory. I've done well in theory, above 80%. So practical results will be out tomorrow. So coming back to this story that you shared, it seems to me that you were just lucky and you found nice people around you who sort of pushed you, motivated you, and just brought you here to where you are. Would you agree to that? well, देखिए, there are a lot of stories where, you know, people say, I think एक दिन मैं मनोज मुंतसिर साहब हैं, उनको सुन रहा था, उनकी इंटरव्यू सुन रहा था। मनोज मुंतसिर, जिनको जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि वो बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं मुंबई में, मुंबई के बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं। उनके गाने बहुत सारे हिट हुए हैं, चाहे एक गाना है ये गलियां तेरी गलियां, वो उन्हीं की लिखी हुई है। और फिर में मिट जावा के मैं खिल जावा, ये नया जो गाना है ये भी उन्हीं ने लिखा है। इतने बड़े हिट सिंगर, तो उन्होंने लिरिसिस्ट हैं। तो उनको भी किसी ने बोला कि आई थिंक यू बीन वेरी लकी, यू नो,
surrounded by a lot of good people around you and thus फिर उस बंदे ने अपनी स्टोरी शेयर की कि फुटपाथ पे कितने दिन सोया, कितने दिन भूखे रहा, लेकिन अपनी बातें लोगों को बताने से कभी पीछे नहीं हटा। तो बताता रहा, एक चेन प्रोसेस शुरू हो गया। मेरे गाने के साथ भी ऐसा ही है। आप देखिए, अगर फेसबुक पे आप हैं, तो कई दोस्त मेरे कहते तूने फेसबुक खरीद लिया है क्या, या तेरे को फेसबुक प्रमोट कर रहा है, या तू खुद करता है? क्योंकि एवरी नेक्स्ट पोस्ट जो है वो ब्रिज कुमार की होती है। हर 2 पोस्ट के बाद ब्रिज कुमार का पोस्ट आ रहा है, ब्रिजवानी के पोस्ट आ रहे हैं। ये हो कैसे रहा है? तो मैं ये बिलीव करता हूं कि जब आपका गॉडफादर नहीं होता है, तो आप अपनी मार्केटिंग खुद करते हैं। आप अपने आप को सेल्फ प्रमोट करना शुरू करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी, अब सुबह दातून से मुंह धो रहे हैं तो उसका वीडियो बना के डाल दिया। नहीं, यू नीड टू हैव क्वालिटी, यू नीड टू हैव कंटेंट। अभी मैंने कुछ दिनों पहले मेरा वो बिरजू वाला बहुत फेमस हुआ। आई वाज डूइंग दैट बिरजू कंटेंट, जिसमें कि बिरजू नाम का एक कैरेक्टर होता है, वो आता है एंड इन अ फनी वे ही डिस्कस थिंग्स, गांव की बातें, देहात की बातें, कोरोना पे बातें। I've seen it. I enjoy it. है ना? थैंक यू। तो वो एक कैरेक्टर आया, उसने बड़ा धमाल मचाया। कुछ दिनों पहले मैंने कोरोना पे बनाया था एक। तो अब क्या होता है कि मेरा, कई लोगों का क्या होता है दर्शना जी, एंड यू विल अंडरस्टैंड इट वेल, कि कुछ लोग नौकरियां जो करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो करना जरूरी है घर को चलाने के लिए, एक सैलरी आते रहना चाहिए। एक होता है पैशन, जो आप सो भी जाते हैं तो आपके दिमाग में चलता रहता है, अच्छा सुबह उठ के ना मैं ये करूँ, सुबह उठते ही ना मेरे को प्रेमचंद की कहानियां पढ़नी है ना, तो या फिर सुबह उठ के ना मेरे को ये रिकॉर्ड करना है, ये गाना मैं रिकॉर्ड करूंगा, मेरे गाने में, मेरे दिमाग में अब गाना चल रहा है, मोहम्मद रफी का ये गाना रिकॉर्ड करना। अच्छा, आदमी इतना चंचल है, मेरा दिमाग इतना चंचल है कि एक चीज पे ठहरता नहीं। कहता है कि सभी अच्छा आर्टिस्ट का ऐसा ही होता है। बिल्कुल, तो आप सभी समझेंगे आर्टिस्ट, अभी ये मैं I'll share with you, ये योगा ट्रेनिंग मैं कर रही थी। I am sure you know that I write poetries as well. तो वाह, पोएट्रीज वो मतलब कुछ थॉट्स वगैरह आते हैं तो कहीं भी आ सकते हैं थॉट्स। अभी बिल्कुल, शायर है तो कोई रोक टोक नहीं है। बस गाड़ी चलाते चलाते पेड़ देख दिया तो भी हम उसके उस पे ऊपर भी पोएट्री बना सकते हैं। तो ये सब मेरा 8 वीक्स के लिए बहुत मैंने माइंड को बहुत sort फोकस of करके रखा। stop कर दिया from going that way. So I was talking to my friend and my friend was saying, "Come on, it's easy. You can do the exam." I said, "हाँ, पर आर्टिस्ट है ना बड़े चंचल होते हैं." तो चंचल हो, बिल्कुल चंचल। मेरी वाइफ कई बार कहती है कि तुम एक चीज कैसे, मतलब तुम एक चीज पे फोकस ही नहीं कर पाते हो। मैं क्या करता हूँ, मेरी वाइफ को वो कहती भी है, खुल करके कहती है कि अगर तुम्हारे साथ मैं सिर्फ हूं तो इसलिए कि तुम चाय अच्छा बनाते हो। हाँ, ये वो क्लियरली कहती इसके बाद आपको पिटाई नहीं होने वाली है ना आपकी। है। नहीं, वो क्लियर है। वो तो उसने मेरे को क्या, पूरी दुनिया को बोल रखा है, जो भी जानते हैं, जितने भी दोस्त हैं। अच्छा, मेरी जो आपने जब बट यू कविताओं आर की बात की, ऑनलाइन। नहीं, वो जो ऑनलाइन, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, ये सच है। और मैं ऑनलाइन तो न जाने क्या कुछ बोल चुका हूँ, अगर आप देखें तो बहुत कुछ बोल चुका हूँ। मैं बोलता ही रहता हूँ, और ऑनलाइन तो बहुत सी चीजों पे मैंने बात की है। तो रिस्क लेता रहता हूँ, ये बुरी आदत है मेरी। हो सकता है आज खाना ना मिले, आज डिनर ना मिले, लेकिन हाँ, वो यही कहती है कि तुम्हारे साथ हूं तो सिर्फ चाय तुम बनाते हो अच्छा, इसीलिए। अब बात ये हो गई कि मैं चाय भी बना रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ आ गया, अब चाय उबल रहा है, चाय उबल के गिर गया। अब चाय उबल के गिर गया, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सफाई तो उसे करनी है, या फिर हमारे यहाँ आती है संडे और वेंसडे, 2 दिन को आती है सफाई, वो करे। तो ये है कि आर्टिस्ट जो है किसी चीज, एक चीज पे फोकस करते हैं जो उनका पैशन होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर पैशन भी 4-5 हो जाए तो, पैशन भी, अब सिंगिंग भी है, मेरे को टॉक भी करना है, मेरे को कविताएं भी लिखनी है, मेरे को कुछ से कुछ कहानियां लिखनी है, तो हर चीज पे। तो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये खुश भी रखता है। मेरी जो 5 डेज वर्किंग है, वो इन 2 दिनों में मैं बिल्कुल ही मस्त हो जाता हूँ कि ये 2 दिन तो मेरे हैं। मैं इस पे कहानियां रिकॉर्ड करूंगा, मैं कहानियां लिखूंगा। कभी एक दिन क्या हुआ, आप यकीन नहीं करोगे, मैं रात को उठा, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा, 2 बजे की बात, 2 बजे सुबह की बात है। तो वाइफ कहती है, उसकी अचानक से नींद टूटी, क्या हो गया? तो मैं ना पेन और पेपर लिख के लिख रहा था कुछ। क्या कर रहे हो? बोले कि दिमाग में कुछ आ गया था और मैं इसे ऐसे नहीं जाने देना चाहता था, तो आई वांटेड टू नोट इट डाउन।
मेरे साथ बहुत बार ऐसे होता है, हुआ है ना, और बहुत बार कितनी हुआ है। तो कविताएं तो ऐसे चली गई ब्रिज भाई, सच बोलती हूँ। एकदम So बिल्कुल many are just बिल्कुल। gone because सो you're मेनी, हाँ, anytime it comes. एनी टाइम इट कम्स एंड यू डोंट वांट टू मिस इट। तो मैं उठा और मैंने बोला कि देखो मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे को लिखना है। कहती क्या पागलपंती है, एनीवे यू कैरी ऑन। तो अब तो खैर आदी हो चुकी है इस बात की। शुरू में बड़ी परेशान रहती थी कि ये बंदा बाइपोलर है क्या है, इसके साथ मेंटल इश्यू है ना, ये बंदा क्या है यार, ये अभी बैठा रहता है, फिर बैठ करके कुछ शायराना अंदाज में बोल देता है, थोड़ी देर में बोलता है अच्छा ऑफिस का ये काम, इसको तो मेरे को समझ में नहीं आता, ये रोमांटिक भी तुरंत होता है, तुरंत ही बोरिंग हो जाता है, तुरंत ही स्ट्रेस ले लेता है। तो उस रात की मैंने 4 लाइनें लिखी थी। अब वो दौर था, मैं हर चीज पे थोड़ा खुलकर बोलता हूँ और कभी भी मैं पॉलिटिकल नहीं होता, लेकिन हाँ उस रात को जो लिखी वो 4 लाइनें आपको समझ में आएंगी क्यों मैंने उठकर लिखा। इतना भी क्या था, तो मैंने लिखा था, सुनो प्रधानमंत्री जी ये क्या हो रहा है, सुनो प्रधानमंत्री जी ये क्या हो रहा है, रोजगार विहीन शिक्षा का भार, नवयुवा ढूंढता निराधार, साक्षरता बढ़ रही निसंदेह पर बढ़ रहे शिक्षित बेरोजगार। क्या आपको नहीं लगता, क्या आपको नहीं लगता कि इस लोकतंत्र में कोई बेरोजगारी के बीज बो रहा है? सुनो प्रधानमंत्री जी ये क्या हो रहा है, सुनो प्रधानमंत्री जी ये क्या हो रहा है ना। कोई बाढ़ में डूबा जाता है, कोई सूखा सूखा जाता है, जहां मानव भूखे रह जाते हैं और कुत्ता बिस्किट खाता है। कोई बाढ़ में बहता जाता है, कोई सूखा सूखा रह जाता है और यहाँ मानव भूखे रह जाते हैं और कुत्ता बिस्किट खाता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस भिन्न भारत में कोई विभिन्नता के षड्यंत्र रच रहा है? सुनो प्रधानमंत्री जी ये क्या हो रहा है। ऐसे करके मैंने करीबन एक लंबा सा लिख दिया, क्योंकि दिमाग में आता जा रहा था, लिखता जा रहा था। तो ये होता है एक आर्टिस्ट का दिमाग जो है वो समय नहीं देखता, और दिमाग में रहे तो आप सो भी नहीं सकते, और जब तक उसे लिखो नहीं वो दिमाग चलता रहेगा। सोने का बटन आपने ऑन कर दिया, लेकिन वो सोने का बटन तब तक नहीं काम करेगा जब तक आप उसको उगल ना दो। तो ये एक आर्टिस्ट की प्रॉब्लम होती है, और किसी भी मुद्दे पे तो ये होता है मेरे साथ अक्सर। सच सच सच, बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। मैं तो कई बार यो, अपना स्पेस हमको लेना पड़ता है, अपना वो रोजमर्रा की जिंदगी में। यू हैव टू फाइंड टाइम इफ यू आर राइटिंग पोएट्री, एंड इफ इट कम्स यू कैन नॉट स्टॉप इट, यू हैव टू। कई यू बार कैन तो नॉट। मैं ऑफिस में भी मुझे पेपर और पेन लेकर आई हैव टू हैव दैट ब्रेक एंड राइट इट डाउन, यू नो। बट लकीली मेरे कलीग्स अभी तो नहीं है वो जॉब, बट मैंने काफी साल काम किया वहां मेरे कलीग से, और all were interested in poetry, और मैंने शायद उनको इंटरेस्ट करवा दिया। So that was lucky that you know, luck भी होता है that you get understanding colleagues and friends around you who motivate बिल्कुल you. तो बिल्कुल। अभी सिंगिंग तो मैंने आपकी बहुत सुनी है, फेसबुक पे कई बार सुनी है, लाइव भी सुनी है। तो मैंने सुना है आप 90s के दौर के बहुत सारे सॉन्ग्स आप गाते हैं, तो कुछ हो जाए। 90s ऐसा है कि 90s में हम लोग सब 90s के ही पले बढ़े लोग हैं। हम लोग उस दौर के लोग हैं जब पान की दुकान से लेकर के बाल काटने की दुकान पे कुमार शानू के आशिकी के गाने बजते, सच है ना। बात है। तो ये वो दौर था जब आपको संगीत सीखने की जरूरत नहीं थी, हर तरफ गाने बजते थे। ये वो दौर नहीं था जब हेडफोन लगा के लोग गाने सुनते थे, लाउड स्पीकर बजा के लोग गाने सुनते थे। ये वो दौर, गलियों से गुजरते हुए, रास्तों पे चलते हुए, हाथ को मलते हुए गाने बजते। गानों के लिए ये दौर नहीं था कि आपने फोन में हेडफोन लगा के सुनना है, गाने हर तरफ बजते। और गानों का वो दौर था कि गाने आपके अंदर जबरदस्ती घुसते थे। आप शांत भी रहना नहीं नहीं हो सकते हो कि गाने घुसते थे। तो उस दौर के पले बड़े हम हैं, और उस जगह पे जहां म्यूजिक गली गली में होता था, तो हमने कोई, आपको आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई हैवंट लर्न म्यूजिक, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड सिंगर। लेकिन कईयों की तरह किशोर कुमार के भक्त, कुमार शानू के भक्त, उदित नारायण के करोड़ों अरबों भक्तों में से एक भक्त मैं, जिसने तहे दिल से उनको माना और कोशिश की। तो जैसे एक गाना है किशोर कुमार जी की 4 लाइनें सुनाता हूँ आपको। मैं म्यूजिक पे नहीं, आज बस ऐसे ही गाता हूँ, फिर कभी शो करेंगे जिसमें पूरा ट्रैक के साथ करेंगे। तो एक गाना है जो श्योर जिंदगी को श्योर, बहुत, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिफाइन करता हुआ एक गाना है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर,
कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। और सबसे खूबसूरत बात जो आगे की लाइनें आती ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल। तो सबसे खूबसूरत वो लाइनें हैं जो कहते हैं, जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम, जाएंगे पर किधर है परेशान नजर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ये है जिंदगी का सब। ब्यूटीफुल। आनंद मूवी, राइट? जी 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 बिल्कुल, राजेश खन्ना की वो अमर कर देने वाली एक्टिंग है। आंखों पे हमेशा एक पानी आप देख सकते हो उस पूरी मूवी में। वो पानी जो ठहरा हुआ है, कभी गिरता नहीं है, लेकिन औरों की आंखों से आंसू उसने जो गिरवाए हैं उस मूवी ने। तो राजेश खन्ना सुपरस्टार, मतलब उस जैसे एक्टर का मतलब मैंने नहीं देखा। अमिताभ बच्चन भी आए, एंग्री यंग मैन की भूमिका की, लेकिन राजेश खन्ना की जो बात थी वो मुझे नहीं लगता किसी एक्टर में। मेरे मॉम डैड थे ना, वो भी बहुत बड़े फैन थे राजेश खन्ना के, बहुत बहुत मतलब बहुत। दे वर लाइक दे हैवंट मिस्ड अ सिंगल मूवी ऑफ राजेश खन्ना, इतने फैंस थे। बहुत ही बड़े फैन थे मेरे पेरेंट्स राजेश खन्ना मूवीज। और या बट कमिंग बैक टू 90s का कुछ सॉन्ग हो जाए। 90s का ही एक गाना है जो कि जिंदगी से ही जुड़ा हुआ है, जिंदगी की ही है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा रोमांटिक गाने गाता हूँ मोस्टली। मैं दर्द भरे नगमे तब गाता हूँ जब लोग स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं, और जब 3-4 पॉइंट उनका चढ़ जाता है, जब दारू थोड़ी ऊपर होने लगती है, तब उनके फरमाइश आने लगते हैं कि अब आप सुनाओ। दिल आज शायर है, गम आज गमा है, शब ये गजल है सनम, गैरों की महफिल में और रोने वाले हो इस तरफ भी करम, दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। तो खैर वो दौर पे जाते हैं। अच्छा, ये मैं आपको 90s के गाने सुनाता हूँ। 90s का एक गाना है, जिंदगी से ही जुड़ा हुआ है। जिंदगी की तलाश में हम मौत के और पास आ गए। तो खैर इस तरह के गाने थे। फिर 90s में वो भी दौर आया जब कुमार शानू जी, शानू तो छाए हुए थे। डीडीएलजे का वो गाना जो कि सरसों के खेत में फिल्माया गया, शाहरुख खान और काजोल जी। तुझे देखा तो ये जाना सनम, यहाँ होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। डिंग 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 डिंग, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम,
तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो वो एक दौर था, है ना, कुमार शानू जी के। फिर उदित नारायण साहब का भी दौर था, है ना। उदित नारायण जी ने भी बहुत ही खूबसूरत गाने गाए। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तो हाँ कर या ना कर। तो वो भी एक दौर था। तो हर तरह के गाने, मतलब अभी आपका आप फेवरेट कौन सा है? मेरा मेरा फेवरेट, जब फेवरेट गाने की बात होती है तो मोस्टली कुमार शानू के गाने हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं। कुमार शानू के गाने, हर तरह के गाने हम गाते हैं, जैसे कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके ओ दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके। और एक गाना था, सरफरोश का गाना था एक, आमिर खान और सोनाली बेंद्रे पे फिल्माया गया था। वो भी गाना मेरा बड़ा फेवरेट है। वो गाना है जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है, जाने मन दिलों में प्यार का ये कैसा असर हो रहा है, जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है, जाने मन दिलों में प्यार का। तो ये एक बात होती थी कि गाने को एकदम सॉफ्टनेस से लेकर के एकदम से ऊपर ले जाना, और ये कुमार शानू साहब बड़े अच्छे से करते थे। तो ये उनकी खासियत थी। और जो भी गाने को वो गाते थे, चाहे वो आप हल्का सा गाना ले लीजिए, एक मैं ऐसी मजाकिया गाना लेता हूं उनका, जो वो गाना था बाजीगर का गाना था। बाजीगर के बीच की लाइन से मैं आपको उठाता हूं। गाना है लिखा है मेरी जान, ये कुमार शानू नहीं, विनोद राठौर ने गाया है, और ये भी कितना खूबसूरत देखिए। लिखा है मेरी जान नजर से पड़ा है, फिर यहाँ पे वो आती, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है, टिंटो 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 टो टिंटो टो 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 टो, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। अब इस गाने की बात यह है कि हालांकि गाना नया है, 90s का है, लेकिन अंदाज मोहम्मद रफी वाला है। अगर आप गौर करें तो आपको लगेगा कि मोहम्मद रफी जी का स्टाइल है ना। जैसे बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, तो वो एक झटके वाले गाने थे। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीले आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं या उसकी जिसने। तो वो एक जो, तो वो मिक्सिंग होती रही। अब बाजीगर का एक और गाना लेते हैं, है ना, कुमार शानू जी ने गाया, ये काली काली आंखें टुरुरु टुरुरु, है ना। तो इन गानों में क्या होता है कि आप म्यूजिक ना भी दो तो आपके बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है ना। देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा, ये काली काली आंखें टुरुरु टुरुरु, ये गोरे गोरे गाल, ये हिरनी जैसी। तो वो एक दौर था, है ना। एक है ना फिल्म थी गुप्त, जी गुप्त जी के जी सभी गाने वर आउटस्टैंडिंग, उसके आउटस्टैंडिंग।
और दो- दूसरी एक फिल्म थी राज, राज के गाने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग, ब्यूटीफुल। हाँ, ब्यूटीफुल। बहुत सारे सारे 90s के आप ले लीजिए। गुलाम के भी गाने बड़े अच्छे थे, गुलाम के भी जो गाने थे वो बड़े अच्छे थे। आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना तड़पने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, दीवाना दिल यूं धड़कने लगा, मैं मचलने लगा। लिरिक्स आई डोंट रिमेम्बर, बट बड़े अच्छे अच्छे गाने थे। मतलब ये कहने का मतलब है कि एक से एक गाने। और फिर वो आपको याद होगा अनु मलिक जी के साथ जो गाया था। सॉरी, जब गानों की बात होती है तो मैं रुकता ही नहीं हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। तो गाने पे ये था, उनका था, अनु मलिक साहब पहले शुरू करते हैं और बड़ा अच्छा अंग्रेजी और हिंदी का जो है एक अच्छा फ्यूजन आया था। तो शुरू होता है, Why did you break my heart? Why did you fall in love? Why did you go away, away, away? Ding, ding, ding. है ना? तो वहां म्यूजिकली, दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था, मुझसे दिल लगाया क्यों, जब ये मुंह मोड़ना ही था। Why did you break my heart? Why did you fall in love? Why did you go away, away, away? तो ये एक ब्यूटी है। और फिर आप उस पे चले जाइए, सर मूवी का वो गाना जहां कुमार शानू जी हैं फिर से, और कुमार शानू जी का वो गाना है, सुन 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 बरसात की धुन सुन, सुन 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 बरसात की धुन सुन, बिजली चमकी लिपट गए हम, बारिश बादल गरजा लिपट गए हम, ये है कितना अच्छा शगुन। तो वो भी है। और फिर आप जब 90s की बातें करते हैं तो दिल है कि मानता नहीं भी उसको कैसे बुलाया जा सकता है। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल सॉन्ग है ना। ब्यूटीफुल। मतलब वो ऐसे गाने थे कि हमको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ ही जाते थे, पूरे पूरे आते थे। अब ये देखिए कि गाना आया तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। उदित नारायण जी इतने वर्सेटाइल सिंगर हैं। जब मैंने उनको पहली बार सुना उस गाने में तो मुझे लगा नहीं कि उदित नारायण है, क्योंकि उन्होंने एक हैवी पिच पे उस गाने को गाया। लेकिन उस गाने की जो स्टार्टिंग है उससे भी ज्यादा मुझे जो अंतरा है वो मजा आता है सुनने में भी, लिखा भी उतना ही खूबसूरत है। तो वो गाना था ऐसे जैसे कि बोल जरा तू जाने महबूबी, मुझ में ऐसी क्या है खूबी, बोल जरा तू जाने महबूबी, मुझ में ऐसी क्या है खूबी, तू एक रेशम की डोर डोर, तू एक रेशम की डोर डोर, तेरे चाल पे आशिक मोर मोर, तेरी जुल्फ गनी, तेरी जुल्फ गनी चित चोर चोर, घन घोर घटा बद मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज। तो देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि गाने जो हैं आए ही नहीं, पुराने गाने ही सब कुछ है। नहीं, पुराने गाने हैं, ओल्ड इज गोल्ड, आई डोंट डिनाई दैट। बट जो 90s के लड़के हैं, जो 90s के हम और आप हैं, वो कैसे डिनाई कर सकते हैं कि 90s का गोल्डन एरा नहीं था। तो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इन 90s, तो ब्यूटीफुल 90s के सॉन्ग्स। जो गाने हैं उसको कैसे हम दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, ऐसा ही कुछ है। लिरिक्स याद नहीं रहता मुझे, पर देखिए कितना, मतलब एक एक चीज आप ध्यान से देखिए, लिरिक्स तक को देखिए, है ना। लिरिक्स में भी आप ये नहीं कह सकते कि लिरिक्स बेकार थी, वो गाना नहीं लिखा गया था ढंग से, है वेरी ना। मीनिंगफुल, टचिंग। और एक गाना बहुत 90s का बहुत मुझे पसंद था, चेहरा क्या देखते आशा हो, भोसले जी के साथ, आशा भोसले जी के साथ दिल माशाल्लाह। में उतर कर
देखो ना, Oh, you sing दिल really well. में That's good. कर देखो. I used to love this song. Beautiful song. मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा. मेरी मोहब्बत में है कितना कितना असर, असर देखो ना, देखो ना. तो बड़े मतलब कि एक से गाने आए, और फिर वो गाना कैसे आप भुला सकती है. संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, ज़बां पर तेरा फिर भी नाम आ रहा है, जहां राज को छुपाया न जाए, मोहब्बत में ऐसा मकाम आ रहा है, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को. याद कीजिए वो म्यूजिक, म्यूजिक याद कीजिए. जैसे इन गानों को गाते हैं, आपके बैकग्राउंड में म्यूजिक खुद ब खुद बजने लगता है कि नहीं, है ना. सच ये सच ब्यूटी ब्यूटी तुझे, 90s. और फिर वो कैसे बुला सकते हैं. तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है. अच्छा, सबसे अच्छा पार्ट ये लगता है जो आगे की लाइन, मोहब्बत क्या है ये सबको बता दूंगी. ये अनुराधा पौडवाल जी की लाइन है. मोहब्बत क्या है ये मैं सबको बता दूंगी, समथिंग लाइक दैट. बट ये देखिए कि मैं ये बता रहा हूँ कि गाने जो है आप डिनाई नहीं कर सकते कि 90s को आप, अच्छा वो मजेदार भी गाने थे. रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, वो अलीशा चिनॉय का. हाँ. फिर वो अनु मलिक का भी दौर था जिसमें वो कहती मुंबई से रेल चली दादर में वो भी चढ़ी, अरे मुंबई से रेल चली दादर में वो भी चढ़ी, सूरत में सूरत का दीदार हो गया रे, दिल्ली आने से पहले प्यार हो गया रे, दिल्ली आने से पहले प्यार हो गया. तो ये अनु मलिक और अलीशा चिनॉय के कॉम्बिनेशन पे गाना बनता. लिरिक्स बिल्कुल ही बेकार है, लिरिक्स में कोई दम नहीं है, लेकिन उस गाने का भी अलग ही मस्त. अब ये बताइए, कुमार शानू ने वो भी गाना गाया, हर तरह के गाने गाए. एक लड़की मेरे सामने मेरा दिल लिए जाए जाए जाए, हाय हाय हुकू हाय 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 हाय. हाय हुकू. वो तो उस तरह के भी गाने बने, और उस तरह भी गाने, चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे सोला. तो हर तरह के गाने बने. आप सिर्फ उन गानों को लेकर के ये नहीं कह सकते कि मीनिंगलेस गाने थे, ऐसा नहीं. उस समय बाबा सहगल भी आए, बाबा सहगल भी कुछ दिनों तक राज किया उन्होंने. यू नो बाबा सहगल, राइट. बाबा सहगल, उनकी फिल्म में आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं ना रुकेंगे हम, पॉ पॉ गाना हाना खाना पीना गाड़ी में होगा सनम, पॉ पॉ आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा. तो वो भी है ना. और फिर देवंग पटेल को कैसे भूल सकते हैं. जब 90s की आपने बात की तो मैं सबको लेके आता हूँ थोड़ा. देवंग पटेल, बिल्कुल और बिल्कुल. देवंग पटेल जी का वो गाना आप कैसे भुला सकती हैं. माधुरी दीक्षित मिली रास्ते में, खाए चने हमने सस्ते में, उसने कहा तेरे संग शादी रचाऊं, घर आके तेरे में पराठे पकाऊं. माधुरी को बोल दिया नाम बाबा नाम, मैंने श्रीदेवी को बोल दिया घर ना आना, चाहे दहेज में दे मुझे सोने की कार या लाके दे दे कोई मुझे हीरो का हार, पर शादी के लिए मैं तो कच्चा हूँ, अभी 100 साल का छोटा बच्चा हूँ. मेरे दद्दू पहने डायपर, चश्मे पर उनके वाइपर, मेरी दादा की टूटी हड्डी जब खेले वो कबड्डी, मैंने एवरेस्ट पे फुटबॉल खेला है, मैंने ट्रेन को हाथों से धकेला है, कुश्ती में दारा सिंह मेरा चेला है. तो वो भी गाने आए, है ना. तो 90s तो मिक्स ऑफ डिफरेंट सॉन्ग्स थे. अब मैं आपको बोलने का मौका देता हूँ कृष्णा जी, क्योंकि गाना मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है. अगर आप वो डिक्शनरी खोल दो तो आई कैन जस्ट कैरी ऑन. तो बस अभी क्या मैं आपको बोलूँ, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय शो. और ऐसे अधूरा लग रहा है, सो वी शुड डेफिनेटली हैव अ 1 hour सेशन वेयर वी जस्ट सिंग ऑल दीज 90s सॉन्ग्स. ऑफ कोर्स, या नहीं, आप एक बार प्लान करेंगे और अच्छे से पूरे म्यूजिक के साथ ढंग से करेंगे
पर हाँ, आज थोड़ा जुड़ने का यही प्लान था कि आपसे जुड़े, थोड़ा नर्वस वाली जो फीलिंग है वो दूर जाए थोड़ी मेरी, और उसके बाद फिर हम लोग आराम से, ताकि आपको मैं फेस करके गाने गा पाऊँ। अभी तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बीच-बीच में इधर-उधर हट जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस कॉन्फिडेंट नज़रों को देख नहीं पा रहा। वो होता है ना कि जो आपकी नज़रें हैं वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि मैं थोड़ा नर्वस फील करने लगता हूँ, तो मैं थोड़ा इधर-उधर हिल जाता हूँ बातें करते। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी उतने ही कॉन्फिडेंट है, मैं देख रही हूँ। बट 90s की आपने याद दिलाई, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। वो तो हमारा दौर था ही, बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स एज़ वेल, यू नो, ओल्ड ब्लैक एंड व्हाइट सॉन्ग्स। मुझे काफ़ी बहुत सारे खूबसूरत मतलब ऐसे-ऐसे गाने हैं जो कभी किसी को मेरी सहेलियों को सुनाती ना, वो लोग बोलते कहाँ से लाई है तू ये नहीं, सॉन्ग, एक जैसे से एक उन्होंने गाने हैं। सुने भी नहीं रहेंगे। क्या बात! वैसे मुझे ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद है, कुछ क्योंकि सुना दें फिर आप भी जाते-जाते। अ, हाँ, सुना सकते हैं। सुनाइए। पर उसके पहले एक ब्लैक एंड व्हाइट तो एक गाऊँगी मैं, बट उसके पहले एक ये है ना, थोड़ा ह्यूमरस हो जाएगा, हुँ, हुँ। बट या ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बट इट्स हुँ। लाइक बहुत जुड़ता मिलता है। मैं, अगर आपने मुझे गाने के लिए बोला है तो मैं तो सिंगर नहीं हूँ। हाँ, बाथरूम सिंगर ज़रूर हूँ। तो उसी के कनेक्टेड ये गाना है। आई होप यू जी, लाइक सुनाइए। इट। बिल्कुल। गाना मेरे बस की बात नहीं, गाना मेरे बस की बात नहीं, गाना मेरे बस की बात नहीं, सुर और ताल का ज्ञान नहीं, सुर और ताल का ज्ञान नहीं, गाना मेरे बस की बात नहीं, गाना मेरे बस की बात नहीं, गाना मेरे बस की, गाना मेरे बस की, गाना मेरे बस की बात नहीं। वाह, वाह! क्या सुर का मतलब आपने क्या एंड किया है, मतलब क्लासिकल एंड में, है ना? अरे वो एक मेरे मित्र ने फिर मैसेज भेजा कि 90s के वो भी बहुत बड़े फैन है, हमारे विक्की भाई, आपको आपको आप शायद जानती हो, विक्की भाई हैं, और वो कुछ गाने बता रहे हैं कि बड़े अच्छे-अच्छे, वो एक गाना था आती क्या खंडाला, क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूं, सुन सुना आती क्या बात क्या खंडाला, हंगाला। अरे क्या करूं आगे मैं खंडाला, अरे घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे नाचेंगे ऐश करेंगे और क्या, तो वो भी गाने आए। और फिर एक कहती है, अरे एक है अनार यहाँ कितने बीमार यहाँ ये दिल मैं किस किस को दूं, धूम अरे हर एक लड़की मुझ मुझ पे है पे है मरती, मरती। ये दिल मैं किस किस को दूं, क्योंकि मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी, मेरी ड्रेस भी सेक्सी, मेरी टाई भी सेक्सी है, तो वो भी था, है ना? तो एक से एक गाने हैं। क्या बताऊं, मतलब आप 90s की तो बात कभी आप छेड़ना मत, अगले डिस्कशन में 90s मत बोलना, बाकी सब बोलना। और एक्चुअली पता है आपको, अभी आपने बात ये ऐसी ऐसे गाने गाए तो मुझे गोविंदा का वो सॉन्ग याद आया। कौन सा था वो? मेरी गोविंदा एंड करिश्मा मर्जी। कपूर का भेलपूरी वाला कुछ। अच्छा हाँ, नहीं पर गोविंदा और करिश्मा कपूर का तो मुझे वो गाना बड़ा प्यारा लगता है यार। हालांकि लोग कहते हैं परिवार के साथ सुनने वाला गाना नहीं है, पर वो गाना, सरकाइल्यो खटिया, सरकाइल्यो खटिया, जाड़ा लगे हो सरकाइल्यो। अच्छा, उसकी स्टार्टिंग से भी ज्यादा मेरे को बीच की लाइनें ज्यादा पसंद है। कितना सताए है मौसम बेदर्दी, हाय ना जाए ये मौसम क्यों सर्दी, सुई चुभे कोई शोला सा भड़के, हाय ये बेदर्दी जिया मोरा धड़के, हो सताए बड़ी रतिया, जाड़ा लगे रे सर काइलियो, सर काइलियो खटिया जाड़ा लगे। और जो आप भेलपुरी वाली बात कर रही थी वो गाना है, मैं तो रास्ते से जा रहा यस, था,
मैं तो भेलपूरी खा रहा था, ओ मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, उनकी घुमा रहा था। तुझ तेरी नानी मरी तुझे तो मिर्ची मैं लगी तो हाँ, मैं क्या मैं करूं। क्या करूं, हो तुझे मिर्ची लगी तो। दर्शना जी एक बात है, देखो आपने कितनी सीरियस सीरियस इंटरव्यू करी होगी, इस तरह का मजेदार इंटरव्यू आपने किया है क्या, बताओ। मैं यही करना चाहती थी और इतना व्हाट अच्छा टाइम सेट हो गया बिकॉज एंड व्हाट क्रिसमस कम हॉलीडेज बैक। भी आ रहे हैं और हाँ, इतने दिनों के बाद आप आई हैं, लोगों को इतना बढ़िया चीज दे रही है, मतलब दर्शना जी को गाते हुए किसी ने सुना होगा, बताओ, ये तो ब्रिज का कमाल है कि वो गा रही है। मैं और एक गाना गाना चाहती हूँ। अभी आज जरूर गाने की गाइए, बात निकली है आज पर आज नया सुनाओ है, यार, 90s सुनाओ। का नहीं है, 90s का नहीं है। अच्छा ये गाना पुराना है। एक्चुअली है ना, मैं मेरे गुरु को बहुत मानती हूँ तो जी। उनके लिए गाती हूँ ये। तो अभी क्या ऐसा है कि यू नो ये योगा कोर्स था ना, उसमें मैंने सीखा कि देयर आर लॉट ऑफ वेज एंड पाथ्स टू अचीव दैट और अचीव एनलाइटनमेंट, या जो भी वो फाइनल चीज जो लोग ढूंढ रहे हैं, लिबरेशन। तो एक होता है ज्ञान योगा, होता है भक्ति योगा, होता है राज योगा, होता है। और इसमें से भक्ति का जो रस होता है ना, वो कुछ अलग होता है। सो व्हेन यू मीट योर गुरु इन फॉर्म, देन वो भक्ति रस तो होना ही है। और श्री श्री रविशंकर है ही ऐसे कि उनसे कोई प्यार ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता, उनकी स्माइल पे ही सब फिदा है। तो उनके लिए मैं ये गाती हूँ क्योंकि बहुत सारा क्राउड होता है, देयर आर लैक्स ऑफ पीपल अराउंड टू मीट हिम। और कभी कभी हम लोग को लगता है कि गुरुजी ने हमें ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा हमको फीलिंग होता है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो गुरु होते हैं उनकी तो नजर सब पर होती है, पर वो फीलिंग तो आ जाती है दिल में। तो इसके लिए मैं छोटी सी लाइन बोलूंगी, एक मिनट। हाँ। मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की कर अदाएं, कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं यारा, यारा। क्या बात, क्या बात। और ये जो गाना है आशिकी 2 से, क्या खूबसूरत गाना है ना। और ये जिंदगी में बहुत ही अप्लाई होता है ये गाना, बहुत ही हाँ, ज्यादा अप्लाई होता बहुत। ये आशिकी है, 2 सब मैंने पढ़ा है कभी मैंने। देखी नहीं थी, ये फिल्म मौका नहीं मिला था मुझे। बट इन माय फ्लाइट आई वॉच दिस मूवी एंड आई रियली नाइस लव्ड मूवी। दिस मूवी, आई लव दिस मूवी, क्योंकि ये पूरा आर्टिस्ट के बारे में है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आर्टिस्ट आई की हैवंट वॉच्ड इट जिंदगी, येट। यू हैवंट सीन इट, यू शुडंट मिस इट। इट इज ऑल अबाउट आर्टिस्ट, ब्यूटीफुल। वो एक लड़की की तो कहानी अभी है, अभी जो ब्यूटीफुल। आपने गाना गाया, अभी जो आपने गाना गाया ना दर्शना जी, बहुत ही प्यारा गाना था। इस पे एक और है कुमार शानू जी का गाना, कहते हैं तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, टिटिंग 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 टिटिंग, तुम चीज हो क्या तुम्हें मालूम नहीं है, टिटिंग 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 टिटिंग, वो तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम चीज हो क्या तुम्हें मालूम नहीं है, लाखों है यहाँ। तो वो बात है दर्शना जी, आपको मालूम ही नहीं है क्या चीज। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, और बस यही है जिंदगी। देखिए बहुत से लोग कहते हैं, पता है क्या, मैं क्यों, आई डोंट थिंक आई कैन सिंग। द फर्स्ट ऑफ ऑल, आप दूसरों के लिए मत गाओ, अपने लिए गाओ। मैं ये कहता हूँ, why are you saying that I don't think I can't sing? You're not singing for anyone else, you sing for yourself. Start singing for yourself, start enjoying yourself. The day will come when people gonna say, X, Y, Z, oh my God, I have seen my friends, I have seen
lots of my friends being in the industry, बॉलीवुड नहीं बोलूंगा, पर हाँ इस जो बॉलीवुड सिंगिंग की इंडस्ट्री में तो मैं हूँ यूके में, अगर आप कह लो तो मैं आज सारे सिंगर्स को ऑलमोस्ट जानता हूँ जो भी यहाँ पे बॉलीवुड सिंगिंग करते हैं, पंजाबी सिंगिंग भी करते हैं, उन सबसे मेरा कांटेक्ट है, सबों से मेरी बातचीत कहीं ना कहीं उससे हो ही जाती। अच्छा, उनमें से कई लोग ऐसे थे जिनकी सुर अगर आप पहले सुन लेते, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, पहले अगर आप सुन लेते तो बोलते यार ये बंदा क्यों गा रहा है, अरे गा रहा है तो कम से कम घर पे गाए, अपने लिए गाए, है ना। वो आवाज होती थी उसकी। उसने बोला ब्रिज हाउ टू इम्प्रूव। मेरे पास आए, कई लोग आए, तो उन्हें लगता था कि मैं बहुत ट्रेंड सिंगर हूं। देखो मैं तो ऑनलाइन अभी भी मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, आई एम नॉट अ ट्रेंड सिंगर, आई लव सिंगिंग, ओके, आई लव सिंगिंग। और भगवान का वरदान रहा या लोगों का प्यार रहा कि उनको शायद मेरे गाने से ज्यादा मेरा अंदाज पसंद आता है। जब मैं गाता हूं तो लोग कहते हैं कि ब्रिज को उसकी सिर्फ ऑडियो नहीं सुननी, वी वांट टू सी ब्रिज सिंगिंग, यू नो, एंड दैट्स द डिफरेंस। आई थिंक दैट इज वेयर द फुल पैकेज कम्स। क्योंकि है ना, गाने के साथ गाना एक बात है, बट उसके साथ इमोशंस के साथ वो गाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार मैं अपनी ही वीडियोस देखता हूं तो मैं बोलता हूं मैंने ऐसा मुंह क्यों बनाया, पर उस समय निकलता है, हो जाता है, उस समय यू कांट कंट्रोल कि यू कांट एक्ट, क्योंकि आप गाने में जब डूब गए तो आंखें मूंद ली और मुंह फाड़ के आपका पूरा वो एक्सप्रेशन आ रहा है, बट दैट्स द म्यूजिक, यू नो, यू आर कंप्लीटली इनटू इट। अच्छा, मैं उस बंदे की बात कर रहा था कि वो आया ब्रिज क्या करना है, मैंने बोला देखो आप एक काम करो, अपने लिए गाओ पहले ना, पहले तो अपने लिए ही गाओ, और जिस कॉन्फिडेंस से आज आपने गाया ना, लोगों की तरफ मत देखो, लोगों की सुनो भी मत। कोई आपको ग्लास चला के तो मारा नहीं किसी ने, जब ऐसी नौबत आ जाए तब सीरियसली सोचना कि प्लेट चला के कोई मार रहा है, भैया रिस्क है। किसी ने नहीं मारा, आपने गाया, और उस बंदे ने कंटिन्यू रखा गाना। जब भी मैं लाइव इवेंट में जाता था या फिर किसी और के भी इवेंट में वो जाके गाता था। आज उसके गाने में 2 साल के फर्क में उसने जो गाने को यहां से लेके वहां पे ले गया, और उसने किसी गुरु से ज्ञान नहीं लिया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि गुरु से ज्ञान तो लोग ऐसे भी लेते हैं ना, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके एकलव्य ने ज्ञान ले लिया, है ना। हाँ हाँ, जैसे हमने किशोर कुमार को सुनते सुनते उनसे ज्ञान ले लिया, कुमार शानू को सुनते सुनते उनसे ज्ञान ले लिया। तो कोई भी अगर कहता है कि मैंने गुरु से नहीं सीखा, वो झूठ बोलता है। हाँ, वो झूठ बोलता है। एक्चुअली सच बात ये है कि हर कोई किसी न किसी का गुरु है ही। हर कोई किसी जो न किसी माँ का होती है ना, वो सबसे हमारी पहली गुरु होती है, और जिससे भी हम सीखते हैं वो हमारे सब गुरु ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप गुरु से ही सीख रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बारे में ये भी बोला कि ज्ञानति मेरा अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु, तुमने मेरे अज्ञान रूपी चक्षुओं को खोलकर जो ज्ञान रूपी दर्शन करवाया है, उस गुरु को शत शत प्रणाम। आप कह सकते हो कि आप डायरेक्टली उस गुरु के कांटेक्ट में नहीं आए हो, लेकिन उस गुरु की मूर्ति बना करके तुमने सीखा है, हमने सीखा है। आज वो देखिए, तो मैं हर किसी को कहता हूं, जो भी कहता है ना ब्रिज आई डोंट थिंक आई कैन सिंग, मेरा पहला चीज ये होता है उसको कि are you thinking that or someone else told you? It's not your thinking, right? True, if he's true. Someone must have come to you and said, bro, stop singing, you know, that's not your cup of tea. Don't listen to them. You're singing for yourself first, for your satisfaction, the inner satisfaction. Once you sing, you feel I'm out of stress, you know, the stress buster, the best thing the music can give you, whether you are listening or singing. Can you listen to a song without singing? मैं अगर सुन रहा हूं उस गाने को और गाने में मजा आ गया तो मैं उसके साथ गाऊंगा, एक दो लाइन आप गुनगुनाएंगे, जरूर गुनगुनाएंगे। तो अगर आप में ये है तो यू कैन सिंग। नेवर लिसन टू एनीवन, स्टार्ट सिंगिंग फॉर योरसेल्फ फर्स्ट, and then the day will come when people, I have seen people, and believe me, whoever is listening to me through this show, if you think you can't do something, just don't listen to them. Do it for yourself. Do it alone. Let your action speaks about, you know, the words are not important, your action is more important. Action speaks louder than your word. So carry on guys. और दर्शना जी, आपकी आवाज सुन के मजा आ गया। ऐसे ही गाते रहो यार, गुनगुनाते रहो शो में थोड़ा। मैं तो गाती ही रहती हूँ। आज आपके साथ
शो में भी गाने का मौका मिला, क्योंकि सामने वाले बंदे भी इतने रिसेप्टिव होने चाहिए, इतना वो माहौल भी बनना चाहिए, यू नो। सो बिफोर गोइंग, यू नो, क्योंकि मैंने ब्लैक एंड व्हाइट सॉन्ग्स की बात की थी, एक सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि शायद ये सॉन्ग फिर से जिंदा हो जाए और लोग यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दे। सो अच्छा दिस जी। सॉन्ग, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड इट, बट इट गोज लाइक दिस। कुछ दिन पहले कंवल कुंज के अंदर रहता था एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा। सुना है आपने ये गाना? नहीं सुना मैंने, नहीं सुना सीरियसली, बट मुझे इट पता है साउंड्स सो। बहुत लोगों ने ये गाना नहीं सुना, इसलिए मैंने ये गाना गाया। बट बिफोर ये शो सच्ची आज है ना खत्म करने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट बिफोर वी फिनिश दिस शो फॉर टुडे, बिकॉज आई एम श्योर यू हैव टू कम अगेन, और महफिल सजानी है फॉर 1 whole hour, अभी भी काफी टाइम हो रहा है। सॉरी इफ आई केप्ट यू वेटिंग, पर जाने से पहले वन मोर सॉन्ग फ्रॉम यू बिफोर वी क्लोज दिस इवनिंग। रुक जाना नहीं यूं कहीं हार के, राहों में मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं यूं कहीं हार के, राहों। कांटों पे Yes. चल के मिलेंगे साए बाहर के। Thanks for correcting my lyrics. I'm always bad with it. Lyrics is कोई भी my. लिरिक्स हो ना, ब्रिज, एनी Hmm. लिरिक्स, आप अगर कभी भूल गए आप मुझे टेक्स्ट करना, ओए मुझे होए। मोस्टली वो आते ही होंगे, अच्छा, क्योंकि तो ये देखो, मेरी मॉम है ना, कांटों में उसकी चल के आवाज, मिलेंगे। मेरी मॉम है ना, उनकी आवाज बहुत आउटस्टैंडिंग थी, बहुत आउटस्टैंडिंग थी। तभी है ना नया नया ये सोनू निगम का शो शुरू हुआ था, एंड वी यूज्ड टू टेल हर कि मॉम आपको जाना चाहिए। उन्होंने कुछ ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं ली थी, मतलब इतनी ब्यूटीफुल आवाज, और वो हमेशा गाती रहती थी। इसीलिए मुझे इतने सारे ब्लैक एंड व्हाइट पुराने पुराने सॉन्ग्स मुझे आते हैं, यू नो, और काफी सारे लिरिक्स भी मुझे याद रह जाते हैं। और नहीं, लिरिक्स याद रखना तो एक बहुत बड़ी कला है, मैं तो यही कहता हूँ। चलिए चलते चलते मैं आपको एक और थोड़ा सा मोटिवेशनल गाना ही मैं सुनाऊंगा। अक्सर जो मैं कहता हूँ, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। इस बार मैंने लिरिक्स खोल के रखा, मैंने बोला लिरिक्स में रखो, तो मैं फिर बोलता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के दर्शना जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय स्टोरी। बहुत अच्छा लगा और दिल भी हल्का हुआ। अच्छा लगता है जुड़ के आपसे, ऐसे ही जुड़ती रहिए। हाँ, अच्छा क्यों लगेगा। नहीं, डेफिनेटली। सो थैंक यू, नमस्ते ब्रिज, थैंक you for coming on my show, and really it was a pleasure to have you this evening. What a beautiful evening we had. And going back to
audience, thank you so much for being with us today, and stay safe, stay connected. Hope you enjoyed this evening, and stay tuned. Reflections with Darshna. This is my own chat show, and we'll be back next week as well with all special, lovely guests. And again, a gentle reminder that tomorrow, 21st December, is a very important day when Jupiter and Saturn will be very close to each other. And it is said that, sometimes we carry a lot of emotional, how do you say, emotional garbage in our mind, and that all will start clearing up. So for that to clear and to just think that happier times are coming, but you do need to meditate on this special day tomorrow. So make sure you meditate twice a day. There's Art of Living app, you can meditate. You can meditate on Sri Ravi Shankar's YouTube channel. I would highly recommend you to do Om Namah Shivaya meditation, or any meditation, guided meditation with His Holiness Sri Ravi Shankar. And stay safe, keep smiling. We have had a lovely evening. More wonderful guests will be coming. Have a restful holidays, and a Merry Christmas to you. Namaste, and it's bye for now. Bye.